on his way, but I guess we need to start because it's important. So friends, these are turbulent times for all of us in the media and entertainment industry. Cinta decided to have this press conference primarily to inform the people and our colleagues and brethren in the print, electronic and social media of what we are doing, our roadblocks, our problems, our situation, vis-a-vis the current sensitive atmosphere related to sexual harassment and child abuse. This press meet is actually a plea to all of you, major stakeholders, all in our industry, to recognize the plaguing issues of the performer community and how all of us live and work in a scenario which is actually not congenial to deliver healthy and creative output. Our pursuit to develop safe measures for health, safety, sanitation, fire hazards, working hours, delayed non-payments, etc. need to reach the correct ears. There's lots to be done, for which we seek your help and cooperation. The idea for this press conference was, friends, that Cinta has really not spoken out or had a meeting with on a one-to-one. All of you know us on a personal level. As a community, as an executive committee, as a body which represents about 9,000 members working in Western India, as India's largest body of performers, as the world's 5th largest body of actors, Cinta is now international. We are part of the Federation of International Actors, and all of you all should be proud that there is an organization that is representing you in the international shows. But we all know what we are all going through in the last couple of days, apart from the other issues that have been plaguing us. So thank you for being here, hearing us out. I request Sushant Singh, our Honorary General Secretary, to address all of you, give his thoughts, his views on what we're trying to do, what are the hurdles, what are the roadblocks, and what is the way forward in his inimitable style. Sushant. Yeah, thank you Amit, and thank you everyone. आप लोग काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई. हमने पहले कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है. पहली बार अपने सारे मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं. काफ़ी नर्वस हूँ, बीच में भूल चूक होगी, उसके लिए सॉरी भी बोलूँगा. वो भूल चूक के बाइट्स पकड़ के मत चलाते रहना कि ये गलती हुई थी. सबसे पहले इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अबाउट द मी टू मूवमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, खासकर हमारी इंडस्ट्री को, जो इस वक्त एक्चुअली इंडस्ट्री है नहीं, सरकार की ओर से तो इंडस्ट्री स्टेटस हमको मिला ही नहीं है, पर सब इंडस्ट्री बोलते हैं, हमें काफ़ी सिंगल आउट किया जा रहा है. बट एज सोशल मीडिया के अकाउंट से आपने देखा ही होगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, चाहे कॉरपोरेट हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो. बॉस को खुश करना है, ये लाइन तो बहुत पहले से फिल्मों में भी सुनते आ रहे हैं. एंड हमारी जब जब सेंसिबल फिल्में बनती हैं, हमने खुद को भी नहीं छोड़ा है. इफ़ यू रिमेंबर सत्या में लेट नीरज वोरा, he played the role of a music composer and how he tried to sexually exploit the heroine कि मैं आपकी लाइफ बना दूंगा. So yes, we do know the problems जो हैं, इग्नोर करते रहे अब तक. शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ, ये तो होता ही है, यही होता है. सो सबसे पहले मी टू मूवमेंट, थैंक यू. जितने फ्लैग बेयरर्स हैं, जितने सर्वाइवर्स हैं, द ट्रू सर्वाइवर्स, अब ये ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई है. द ट्रू सर्वाइवर्स जो भुक्तभोगी हैं असल में, वो जो सामने आए, उन्होंने अपनी अपनी आप बीती सामने रखी, हम सबको झकझोरा, हम सबको जगाया. सबसे पहले तो उन सबको थैंक यू. लेकिन साथ ही में इन सारे फ्लैग बेयरर्स को, जो मैंने कल ट्वीट भी किया था, आज फिर दोहराता हूँ, बहुत सचेत रहना होगा. इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है. जो सेन वॉइसेस हैं, उन्हें कल्प्रिट ठहराने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे. तो जब सपोर्टर ही, फ्लैग बेयरर ही डिस्क्रेडिट हो गया, आपका मूवमेंट तो वहीं से खत्म होना शुरू हो जाएगा. फेक अकाउंट्स, फेक स्टोरीज प्लांट की जा रही हैं, और वो कितना आसान है ये तो हम जानते हैं.
देखा ही है फेक न्यूज़ कितनी आसानी से प्लांट होती हैं। फेक आप बीती प्लांट की जाती है जो 2 दिनों में डिस्क्रेडिट हो जाती है विद प्रूफ। उसका नतीजा क्या होगा कि जो रियल सर्वाइवर्स हैं वो भी डिस्क्रेडिट होने लगेंगे, सबको शक की नज़रों से देखा जाने लगेगा। होते होते क्या होगा, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, द पावरफुल नेम्स जो अब आने शुरू हुए हैं, सबको अपने आप क्लीन चिट मिल जाएगी। यहां मेरी आप सबसे अपील है, मीडिया से अपील है, सोशल साइट्स पर एक तरफा बात रखना बहुत आसान है। आप एक तरफा बात को न्यूज़ ना बनाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरा पक्ष जिस पर एलिगेशन लगा है उसके पास भी जाएं, वेरीफाई करें, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। और हमारे सामने दोनों पक्ष रखें, उसके बाद जनता के तौर पर हम कोई फैसला लें। मैं इस बात की भी अच्छी बात मानता हूं कि कुछ 4 एक्स जजेस का पैनल कुछ घोषित किया गया है जो सारे मीटू केसेस को देखेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और तारीफ करनी होगी इसकी। बट जो भी हो सोच समझ कर करें। नी जर्क रिएक्शंस बहुत हुए, शॉक हम सब हुए पिछले हफ्ते 10 दिन में। मेरे ट्वीट्स आपने देखे ही हैं, मैं तो अब तक शॉक्ड हूं, क्योंकि ये लगा था कि हाँ ये होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छा रोल चाहिए, बड़ी फिल्म चाहिए, तो खास करके हीरोइंस को आप किसी के साथ हम बिस्तर होंगे, पावरफुल आदमी, इंसान के साथ, आदमी के साथ, औरत के साथ, जेंडर न्यूट्रल इशू में मानता हूं इसको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये चॉइस ली, जिन्होंने मंजूर किया इस शर्त को, मैं सोचता था ये कंसेंशुअल है, तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है, उन्होंने तय किया, मैं उन्हें जज करने वाला कौन होता हूं। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिनों में मेरी पूरी सोच को झकझोर करके रख दिया इस मूवमेंट ने। वर्ल्ड व्यू पूरा बदल गया। अगर कंडीशन ही ये बन गई है, अगर एक हीरोइन है, एक लड़की है या एक लड़का है जिसने जिंदगी में सपना ही ये देखा है कि मुझे एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा हीरो बनना है या बड़ी हीरोइन बनना है, और वो एक आउटसाइडर है, जब वो यहां आता है इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत के बाद, सब तैयारी करके, डांस सीखा, सब कुछ सीखा, और यहां आकर के पता चलता है कि नहीं, टैलेंट कंडीशन नहीं है, इकलौती कंडीशन ही ये है, या तो हां करो या चले जाओ, या छोटे रोल करो या कुछ और करो। तो उसमें कंसेंट कहां से है, चॉइस कहां है? चॉइस तो छीन ली गई ना। यही कंडीशन है, इसी कंडीशन पर अच्छा काम मिलेगा, बड़ी फिल्म मिलेगी। क्या करूं फिर मैं? अपना सपना छोड़ दूं? जिंदगी भर जो सपना देखा था, जिस सपने को पाला, वो सपना रातों रात में तोड़ दूं, छोड़ दूं, किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊं, चला जाऊं? और दूसरे फील्ड में क्या गारंटी है कि वहां पर भी यही शर्त नहीं है कि अगर अच्छा बड़ा जर्नलिस्ट बनना है, बड़े असाइनमेंट चाहिए, बड़ा कॉर्पोरेट हॉन्चो बनना है, तरक्की चाहिए, तब भी यही हो रहा है बंद दरवाजों के पीछे, वहां भी तो यही हो रहा है। तो जाऊं कहां? ना सपना तोड़ सकता हूं, सपना तोड़ूं तो दूसरा सपना भी इतना ही छलावे भरा है, करूं क्या? तो है सो है, एक्सेप्ट करना होगा। ये कंसेंट नहीं है, माफ कीजिए, जो लोग करते हैं, और हर इंडस्ट्री में सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेट अस नॉट पेंट द होल इंडस्ट्री एज ब्लैक। हमारे यहां भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं, जो जबरन खुद को थोप नहीं रहे हैं किसी और पर, या इसी को शर्त नहीं बना रहे हैं कि यही होगा तो टैलेंट के दम पर भी काम मिलता है। एक ब्रश से सबको पेंट ना करें, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उन्हें यह समझाना होगा, बताना होगा, माफ कीजिएगा साहब, आप जिसको कंसेंट समझ रहे थे वो कंसेंट नहीं है। जिस लड़की को, जिस लड़के को आप ये चॉइस देते हैं, या जिससे ये चॉइस छीनते हैं, वो जाकर के 4 रात रोता है शायद, या रोती है, उसके बाद एहसास होता है कि नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है, वापस कैसे जाऊं? मान लेता हूं। वो सरेंडर है, सबमिशन है, कंसेंट नहीं है। बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। I'm sorry, I'm way too passionate about all this. So बतौर इंडस्ट्री, सबसे पहले हम डिनायल से हटें, माने कि कुछ गलत हो रहा है, और उस गलत को बदलना, एड्रेस करना बहुत जरूरी है। नी जर्क रिएक्शन से नहीं, मेथोडिकली, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, वीड आउट द रॉन्ग पीपल, जिनके बारे में पता है, जिनके बारे में अब भी लोग चुप हैं, प्लीज नेम देम, शेम देम। लड़कियां एक्सप्लॉइट हुई हैं, लड़के एक्सप्लॉइट हुए हैं, होते हैं। सेक्स, जेंडर का कोई इशू नहीं है यहां पर। जिनके बारे में खुलेआम पता था, यही लगता था कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इतना कुछ होता होगा, जो अकाउंट सामने आए हैं वो नहीं पता था।
उस सब से हम सब शॉक्ड हैं। एक्सेप्टेंस हो रही है, अच्छी बात है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है सेक्सुअल हैरेसमेंट को एड्रेस करने के लिए, हम भी कर रहे हैं। आगे क्या रास्ता है? साथ मिलकर के काम करेंगे, प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयर्स तो प्रोड्यूसर्स ही हैं। हम एक छोटी सी बॉडी हैं, एक्टर्स की बॉडी हैं। बहुत पावरफुल बॉडी भी कभी नहीं रहे, कभी होते थे जब हमारे फिल्म स्टार्स भी हमारे साथ जुड़े होते थे, हमारी एजीएम्स में आते थे। अब ज़्यादातर टीवी के लोग ही आते हैं। वापस 3 सालों में काफ़ी कोशिश की है कि छवि को सुधारें, थोड़ा मजबूत बने, हुए भी हैं। और आज आपकी प्रेजेंस देख करके लगता है कि शायद हमने जो स्टैंड लिया है, जिस पर हमारे कुछ सीनियर्स काफ़ी नाराज़ भी थे कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्यों पुराने केसेस, जो हो गया सो हो गया। वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। हमें भी लगा, मुझे भी लगा अपने ट्वीट्स पर कि यार मैंने नीजर्क रिएक्शन बहुत स्ट्रांग तो नहीं बोल दिया, बट नहीं, उसके बाद जो अकाउंट्स सामने आए लोगों के, मुझे लगा नहीं इतना स्ट्रांग तो नहीं बोला। शायद सिंटा का ऑफिशियल हैंडल मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था आलोकनाथ जी वाली ट्वीट में, आलोकनाथ वाली ट्वीट में। वो मेरा अपना व्यू था, आई स्टिल स्टैंड बाय इट। जो केसेस आए हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले तनुश्री जी का केस था, उसमें जो हमने स्टेटमेंट दिया, हाँ एक तरह से वो अपॉलॉजी थी, लेकिन उसको कई लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि हमने नाना पाटेकर के अगेंस्ट एक्शन शुरू कर दिया है, अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। आप गौर से देखिएगा, हमने कहीं भी ना किसी को दोषी ठहराया ना सही ठहराया, क्योंकि वो गलत है। एक कंप्लेंट दी गई थी, उस कंप्लेंट के सारे पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। वो गलती थी सेंटा की, उस वक्त की कमेटी की, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तनुश्री जी को हमने कहा था अगर आप चाहती हैं आप दोबारा कंप्लेंट दीजिए, हम फिर से इस पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि 10 साल से पुराना केस, 3 साल से पुराना केस हम नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, एफआईआर कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, उसके बाद उनका खत आया कि वो कंप्लेंट को दोबारा शुरू करना चाहती हैं, लेकिन तब तक हमारे हाथ से बाहर जा चुकी थी बात, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकते, और पुलिस हमसे बड़ी बॉडी है, हम तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है भी नहीं, अपने दम पर जितना होता है करते हैं। वी आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। पूरे जो केस फाइल थी, पूरी की पूरी ओरिजिनल पेपर्स पुलिस ने डिमांड किए थे, वो हमने दे दिए हैं। मेरा स्टेटमेंट लिया उन्होंने, जितना मुझे ज्ञात था केस के बारे में। एंड नाउ लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लेट ट्रुथ प्रिवेल। नाना जी को भी हमने खत लिखा था, उनका जवाब भी आया, एंड ही इज़ ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एज ही टोल्ड अस। सो वो मैटर अब वहाँ है। जहाँ तक विंटा जी की बात है, आलोकनाथ जी को शो कॉज नोटिस भेजा गया था, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अगली सुबह ही भेज दिया जाएगा, नहीं, मेरी ईसी मेरी गुलाम नहीं है। थैंकफुली मैंने जज्बात में आकर के रिएक्शन दिया, लेकिन मेरी ईसी ने मुझसे सवाल किए कि सर हम सब के बिना पर आपने कैसे फैसला ले लिया, हमारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके हिसाब से जाएंगे। एक किसी की निजी जिंदगी में ये मामला हुआ था, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हुआ था, क्या वो हमारे दायरे में आता भी है या नहीं। बहुत बहस हुई, मैं तकरीबन 3 दिनों तक ट्विटर से गायब हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि शर्मिंदा था कि मैंने एक झूठा वायदा जो जिसका हक नहीं था मुझे देने का, वो दे दिया था विंटा को। तो शर्मिंदगी में मैं गायब था, गुस्सा भी था, लेकिन अच्छी डिबेट हुई। एंड फाइनली मैं धन्यवाद देता हूं अपनी इसी के सारे मेंबर्स का जो इमरजेंसी मीटिंग में मौजूद थे। सबको लगा कि नहीं, इस पक्ष में सच्चाई तो है, विंटा की बातों में सच्चाई की झलक है, ये बैठ करके कोई बना नहीं सकता, लिख नहीं सकता। और उसमें एक खास बात जो मुझे लगी, ये मेरा व्यक्तिगत वो भी है, और शायद आप लोग इत्तेफाक रखते होंगे नहीं रखते होंगे, क्योंकि काफ़ी तब से बहुत चर्चा हुई इस पर, विंटा जी से सवाल भी पूछे गए कि आप दोबारा क्यों गई, जिसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, मुझे काम चाहिए था जो भी हो। लेकिन उन्होंने जो अकाउंट पब्लिश किया, जो लिखा, उसमें मुझे वो क्लिंचिंग बात लगती है कि अगर किसी को आपको ब्लैक पेंट करना है तो आप कोशिश करेंगे खुद को पूरी तरह वाइट और पूरी तरह विक्टिम पेंट करें। उन्होंने खुद जो गलती की, जिसे वो मानती हैं, अपना कमजोर क्षण, वो भी छिपाया नहीं, उसके लिए मैं दाद देता हूं उनकी। हमारे शोकॉज नोटिस का जवाब आ गया है, जाहिर सी बात है, आलोकनाथ जी ने डिनाई किया है सब कुछ, हमसे मदद भी मांगी है और कहा है कि जब तक अदालत का कोई फैसला ना आ जाए तब तक हम उन्हें एक्सपेल ना करें। लेकिन ये हम लीगल एडवाइस लेंगे, इस पर विचार करेगी, क्योंकि विंटा जी के अकाउंट के बाद हमारे बहुत सी मेंबर्स आगे आई और उन्होंने बताया किस तरह वो भी इसी तरह के व्यवहार की, अभद्रता की शिकार हुई हैं। हमारा ही एक मेंबर कई मेंबर्स के अगेंस्ट इस तरह का दुर्व्यवहार करता रहा है, तो कुछ तो हमें फैसला लेना होगा। क्या फैसला लेंगे, जो भी हो, मेरा ये मानना है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि ये व्यवहार
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेट्स होप। नवनीत निशान जी ने कहा है कि वो कॉरोबोरेट करेंगी विंटा जी की स्टोरी को और सेट पर जो हुआ था। इसके अलावा फ्लोरा सैनी जी का केस, फ्लोरा सैनी जी हमारे पास आई थी, हमारा स्टैंड देख करके फाइनली उन्हें लगा कि कहीं उनकी बात सुनी जा सकती है। उनका केस डोमेस्टिक वायलेंस का है। एसोसिएशन के तौर पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, लेकिन हाँ इतना पब्लिकली कह सकते हैं कि मॉरली लीगली चूंकि हमारी मेंबर है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 2007 का केस है, 2011 हो गया है, 18 हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। सो विजिबली दोज हु आर नॉट लिसनिंग टू हर, जिन्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी, जिन्हें इस केस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की है। कृपया जान ले हम फ्लोरा जी के साथ खड़े हैं और जब तक सुनवाई नहीं होगी हम प्रेशर डालते रहेंगे थ्रू मीडिया, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। पूरी कोशिश करेंगे कि विमेन राइट्स के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनके साथ फ्लोरा जी को जोड़ा जाए, उनकी आवाज को और मजबूत बनाया जाए। दैट इज आवर प्रॉमिस, विल स्टैंड बाय हर। नाउ अब आगे क्या? कमेटीज बन रही हैं, हम भी एक कमेटी बना रहे हैं, बट कहीं ये सब कॉस्मेटिक तो नहीं हो जाएगा कि चलिए कमेटी तो बना दी है, अब लोग आएंगे शिकायत करेंगे, हम शिकायत सॉल्व करेंगे। पर ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को चेताना होगा। हम काफ़ी स्टेप्स हमने प्लान किए हैं। पॉश एट वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सना हकीम एक उसकी फाउंडर हैं, शिवांगी हैं और एक और उनकी मेंबर हैं। उन्होंने खुद अप्रोच किया, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स उन्होंने सुझाए, उनका मैं ब्यौरा आपको दूंगा। एक और अच्छी बात हुई कि स्वरा भास्कर ने हमको अप्रोच किया, जो हमारी मेंबर हैं। वो इंडिपेंडेंट तौर पर इस इशू को लेकर काफ़ी समय से काम कर रही हैं, बहुत मेथोडिकली, कि क्या किया जाए। जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि तकरीबन जो स्टेप्स हमने सोचे थे वही स्टेप्स उन्होंने भी सोचे हैं। सो फिलहाल एक सब कमेटी बनाने का प्लान है। अपार्ट फ्रॉम द कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को हैंडल करेगी, उसके अलावा एक सब कमेटी होगी जो सिलसिलेवार तौर पर अलग अलग इवेंट्स करती रहेंगी। और ये लंबा कार्यक्रम है ताकि अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता चले। मैं स्टेप्स आपको एनिमरेट कर देता हूँ। सबसे पहले कमेटी हमारी जो है उसमें अभी तक जो नाम जिन्होंने हामी भरी है, जो लोग हैं, रवीना टंडन जी हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है उसमें होंगी। उन्होंने खुद ही ऑफर किया कि मैं सेंटा को जो भी मेरी सेवाएं चाहिए मैं तैयार हूं उसके लिए। उसके अलावा रेणुका शाहने जी से बात हुई है, उन्होंने हामी भरी है। अमोल गुप्ते जी हैं, वो इस कमेटी में होंगे। हम इंडिपेंडेंट लोगों को भी रखना चाहते हैं, सिर्फ कलाकारों की कमेटी ना हो। जर्नलिस्ट में भारती दुबे जी का नाम सबको मालूम है, इंडस्ट्री उन्होंने काफ़ी समय से देखी है, उनको हमने पूछा, उन्होंने भी हामी भरी है इसके लिए। इसके अलावा जो पॉश के लॉयर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनको भी शामिल करेंगे। ब्रिनेल डिसूजा जो कि टिस से हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उन्होंने भी अपनी सेवाएं हमें प्रदान की हैं, वो भी इसमें होंगी। इसके अलावा कई सीनियर एक्ट्रेसेस को ऑलरेडी मेल्स गए हैं और हमें उम्मीद है हामी की, क्योंकि हम चाहते हैं ये कमेटी ऐसी हो जिसमें ठहराव हो, एक्सपीरियंस लोग हों, नए लोग भी हों, जो एक्चुअली, और नई पीढ़ी को ज़्यादा समझ है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। नई पीढ़ी शायद इस चेंज का एक बड़ा फेस बन सकती है। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ऐसे लोग हों कि एक बार इस कमेटी ने अगर फैसला दे दिया कि यस सर्टेन पर्सन इज गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड गिल्टी टू एन एक्सटेंट कि उसे एसोसिएशन से एक्सपेल किया जाता है, तो ये कमेटी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, ऐसे प्रतिष्ठित नाम होने चाहिए कि अगर सेंटा से एक्सपेल हुए हैं यानी कि आप इंडस्ट्री से एक्सपेल हो गए हैं। दैट्स द काइंड ऑफ कमेटी वी वांट टू क्रिएट। एंड धीरे धीरे बाकी एसोसिएशंस के साथ मिल करके, ड्रीम तो ये है कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक कमेटी हो, अंतिम फैसला वो दे, लेकिन सब कुछ सोच विचार कर, ठहराव के साथ, नी जर्क रिएक्शंस नहीं, विक्टिमाइजेशन नहीं होना है किसी का भी, ना अक्यूजर का ना अक्यूज्ड का। सो पूरी इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रणाली क्या होगी काम करने की, ये हम अपने लॉयर्स के साथ बैठ करके पूरा बनाएंगे और वापस आपको थ्रू प्रेस नोट विल बी टेलिंग यू व्हाट स्टेप्स दिस कमिटी विल बी टेकिंग टू हैंडल सच केसेस। सब कमिटी जो बन रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रॉब्लम की रूट्स को एड्रेस करने के लिए, उसका काम जो अभी तक सुझाया गया है, सबसे पहले वृंदा ग्रोवर जी से स्वरा भास्कर ने बात की है, जो इस तरह के केसेस काफ़ी हैंडल करती रही हैं, बड़ी लॉयर हैं। वो आकर के एक दिन एक सेशन लेंगी जो पूरी इंडस्ट्री के लिए ओपन होगा,
जहां पर वो समझाएंगी सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, उसके रिपरकशंस क्या हैं, विक्टिम है उस पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि जो लोग कर जाते हैं या कर रहे हैं वो नहीं समझते हैं, उनके लिए शायद वो पल दो पल का खिलवाड़ है, लेकिन जिस पर बीतती है जिंदगी भर के लिए कितना बड़ा जख्म रह जाता है, उसका स्वभाव, हाव भाव, व्यवहार सब बदल जाता है, बिटर हो जाता है वो इंसान, उसकी फैमिली बिटर हो जाती है। आप एक इंसान को कुछ क्षणों के लिए काम के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उतनी सी बात नहीं है, आप एक जिंदगी तहस नहस कर देते हैं, उस जिंदगी से जुड़ी और कई जिंदगियां तहस नहस कर देते हैं। तो धीरे धीरे इसको टैकल करने की जरूरत है। वृंदा गोवर जी इस तरह का एक सेशन लेंगी, ऐसा ही सेशन एक पॉश के लोग भी लेंगे। हमारे ऑफिस में एक दिन काउंसलिंग सेशन या 2 दिन, जितने दिन की जरूरत हो, काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा, जहां पर एक्सपर्ट्स होंगे, पॉश के एक्सपर्ट्स होंगे, जहां पर हमारी कोई भी मेंबर या इंडस्ट्री की और भी कोई मेंबर, पुरुष स्त्री जिनके साथ हुआ है, जो सिर्फ मन हल्का करना चाहते हैं, चाहे एक्शन भी नहीं लेना चाहते, आपका स्वागत होगा। आइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, दिल की बात कह दीजिए, एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी है। बट प्लीज, सबसे पहला किसी भी इस तरह के मूवमेंट में सबसे पहली बात होती है सुना जाए। लेट्स फर्स्ट लिसन। सोशल मीडिया पर भी जो लोग विक्टिम्स को शेम कर रहे हैं या सीधे बोल देते हैं तुम झूठी हो, 19 साल कहां थी, 5 साल कहां थी, 6 साल कहां थी, इसी डर से तो गायब थे भाई कि प्रूफ भी आप उन्हीं से मांगोगे। बंद दरवाजों के पीछे 2 लोगों के बीच कुछ होता है, उसका प्रूफ कहां से लाए कोई? पहले सुनिए, तो पहले मान के चलते हैं सच बोल रहे हैं, सुनिए, फिर दूसरे पक्ष से पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से तो एक स्पेस बनी है हमारी सोसाइटी में, तो शायद ही कोई बच्चा होगा, लड़का या लड़की, जो घर की 4 दीवारी में बचपन में जिसे मोलेस्ट करने की कोशिश ना की गई हो, रिश्तेदारों ने ही किया है। कितने बच्चों ने हिम्मत की आज तक बाहर आने की, बताने की? नहीं की। बड़ी मुश्किल से तो एक माहौल बना है, थोड़ी हिम्मत आई है विक्टिम्स में कि कहीं हमारी बात सुनी जाए। उस जगह को बंद मत कर दो, उस जगह को हाईजैक मत होने दो। लेट अस ऑल बी वेरी वेरी केयरफुल, लेट अस नॉट लेट दिस मूवमेंट डाई। एनीवे, मैं डाइग्रेस करता रहता हूं। काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। पोस्टर्स तैयार किए जाएंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, आसान भाषा में, उसके रिपरकशंस क्या हैं, सजा क्या है। हर स्टूडियो, हर सेट पर वो पोस्टर्स हम जाकर के लगाएंगे। वीडियोस बनाए जाएंगे जो आसानी से समझ आ सकें। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, धीरे 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 होगा। सिंपोजियम होगा, Q&A होगा, थिंक टैंक बनाया जाएगा, सारी प्रोड्यूसर काउंसिल्स हमारे और यूनियंस के साथ मिलकर के, ताकि और क्या कदम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मूवमेंट शुरू हो गया है, मूवमेंट मरने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कोर्स करेक्शन, अगर कोर्स करेक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो फिर सब बेकार है। फिर तो यही है कि आइए, आपकी कहानी हमने सुनी, वाह, थैंक यू फॉर टेलिंग अस, फिर सो जाएंगे। सोना नहीं है, कम से कम हम लोग तो ये वादा कर सकते हैं कि हम नहीं सोएंगे इस पर। कदम ब कदम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे। ओपन माइक सेशन भी करेंगे, जहां पर जो पब्लिकली बोलना चाहते हैं, विदाउट नेमिंग एंड शेमिंग, क्योंकि नेमिंग एंड शेमिंग एक हद तक ठीक है, उसके बाद उससे शायद कड़वाहट और बढ़ जाती है। ये ऐसा सजेशन आया है कि जो लोग भी अपनी आप बीती लोगों के सामने सुनाना चाहते हैं, बड़े हॉल में इंडस्ट्री के सब लोग आए और सुने, समझें कि हमारे यहां क्या क्या हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री से मेरी अपील है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, अक्सर वहां से शुरुआत होती है इसकी। कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है, पुलिस से अपील है। हमने 1-2 बार पुलिस को भी अप्रोच किया, जब किसी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने ओपनली फेसबुक पर मैसेजेस देखे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखे हैं, ये रोल है, ये एज ग्रुप है, कंडीशन कॉम्प्रो, ओपनली बोल रहे हैं अब तो। वी अप्रोच द पुलिस ऑल्सो, एंड पुलिस ने कहा सर हमारी भाषा में, कानूनी भाषा में कॉम्प्रो का कोई मतलब नहीं है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अंडरवर्ल्ड की भाषा को एक्सेप्ट करते हैं कि घोड़ा मतलब बंदूक, खोखा मतलब करोड़, तो हमारी भाषा को भी एक्सेप्ट कीजिए। हमारे यहां कॉम्प्रोमाइज मतलब सेक्सुअल फेवर होता है। जहां भी इस शब्द को सुने, प्लीज हमारे मेंबर की, हमारी फ्रेटर्निटी की कंप्लेंट लें और उस पर एक्शन लें। प्रोड्यूसर्स को हमारे साथ मिलकर के और यूनियंस के साथ मिलकर के तय करना होगा कि कौन
सही कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसकी एक वेरीफाइड लिस्ट बनानी होगी और ये प्लेज लेना होगा कि हम इन्हीं के साथ काम करेंगे। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो एक्चुअली दलाल हैं उन्हें वीड आउट करें। इसमें बिना प्रोड्यूसर्स के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्प्लॉयर्स हैं। होपफुली इस पर कुछ काम कर पाएंगे। और उससे बड़ी बात, अब जो लोग सामने आ रहे हैं जो सच बोल रहे हैं, प्लीज उन्हें विक्टिमाइज ना करें। ये ना कहें कि अब इस वजह से लड़कियों को काम मिलना बंद हो जाएगा। हम तो ऑफिस में भी लड़कियों को नहीं रखेंगे, पता नहीं कल को कौन क्या बोल दे। सर यही मेंटालिटी प्रॉब्लम है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर लड़की बोले तो यानी लड़की को काम ही मत दो। वो सॉल्यूशन नहीं है सर, वो प्रॉब्लम है। हमें अपना बिहेवियर चेक करना होगा। हम कुछ ऐसा करें ही ना कि लड़की या लड़के को बोलने की जरूरत पड़े। अपना व्यवहार बदलें। सारे शूटिंग सेट्स पर सीसीटीवी कैमरास भी होने चाहिए। लेट अस डर पैदा करना जरूरी है, जो मानसिकता नहीं बदलना चाहते, और इस मूवमेंट से डर पैदा हुआ है। लेकिन उस डर का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियों को निकाल देंगे। ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई, वही पैतृक सोच, पितृवादी सोच है, और कुछ नहीं है। ये ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो नॉर्मल हैरेसमेंट यानी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है, लंच ब्रेक नहीं होता है, इन चीजों को लेकर के जब कोई शिकायत करने आता है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। उस प्रोडक्शन हाउस से ब्लैकलिस्ट हो जाता है वो शख्स। लोग डर के मारे नॉर्मल बातों पर कंप्लेंट नहीं करते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे दो एक्टर्स हैं, ज्योति एंड प्रणव। उन्होंने एक प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कंप्लेंट की। वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी, वर्किंग आवर्स बहुत लेट थे, सेफ्टी नहीं थी, उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट उनका 3.5 साल का बना दिया गया था, जबकि ओरिजिनल वो सपोज टू बी 1 ईयर। वो छोड़ना चाहते थे। फाइनली शो बंद हो गया। हमने 2 महीने का टाइम भी दे दिया था प्रोड्यूसर को कि कोई नहीं, ये इमीडिएटली नहीं छोड़ेंगे, 2 महीने का नोटिस दे रहे हैं, आप इनका ट्रैक खत्म कीजिए या जो भी करना है करें। उससे पहले ही चैनल ने शो बंद कर दिया। आज की डेट में ये दोनों एक्टर अनएम्प्लॉयड हैं। पूरी टीवी इंडस्ट्री ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, सिर्फ नॉर्मल हैरेसमेंट कंप्लेंट पर, बैड वर्किंग कंडीशंस इस कंप्लेंट पर। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट वालों का क्या हाल होगा भगवान जाने। तो मेरी अपील है अपने सीनियर्स से, हमारे स्टार्स से, प्लीज इस वक्त हमें जरूरत है कि आप हमारी ताकत बने, हमारी आवाज बने, ताकि सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट ही नहीं, और भी केसेस में हम लोगों को विक्टिम बनने से बचा सकें। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स, प्लीज बदलाव की जरूरत है। टीवी इंडस्ट्री का हाल क्या है आप सबको मालूम है। कितने एक्टर्स बीमारी में भी शूट करते हैं। सलीन ड्रिप चल रहा होता है सेट पर, वो ड्रिप हटा हटा करके शॉट देते हैं। क्यों? क्योंकि दिन की 18 मिनट की फुटेज चाहिए किसी भी कीमत पर। कल का टेलीकास्ट है। बरसों से यही चल रहा है। सालों सालों से जो सीरियल चल रहे हैं, 7-7, 8-8 साल से, वो भी आज तक कल के टेलीकास्ट के लिए शूट कर रहे हैं। जब आपका इकलौता एम, कोर ऑफ इंडस्ट्री बन गया है 18 मिनट की फुटेज, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है, रहने की क्वालिटी क्या है, मेकअप रूम्स की क्वालिटी क्या है, वॉशरूम्स की क्वालिटी क्या है, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जा रहा है, कुछ नहीं। 12, 15, 18 घंटे काम हो रहा है, सोने का टाइम नहीं मिलता। ओवर स्ट्रेस होकर के यंग पीपल हैव डाइड ऑल्सो। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, महीनों महीनों पेमेंट नहीं मिलते हैं। 3 महीने का पेमेंट तो हमारा वैसे ही है, 90 दिन की साइकिल है, 90 दिन का उधार तो हमने दिया ही हुआ है। लास्ट में जब सीरियल बंद हो जाता है, हमारा 90 दिन का पेमेंट, 3 महीने का पेमेंट अटका होता है। वो बार्गेनिंग चिप बन जाता है तकरीबन हर प्रोड्यूसर के लिए। लॉस हो गया जी, एडजस्ट कर लो। साल 2 साल तक दौड़ाते रहते हैं उस पेमेंट के लिए। फाइनली थक हार के हम खुद कहते हैं कोई नहीं यार, 50% ही दे दो, कुछ तो दो। परिपाटी बन गई है। अभी तो खबर आई, एक चैनल ने भी, एक प्रोड्यूसर जिसको लॉस हो गया, उसको कहा कि अरे यार तो पूरा क्यों दे रहे हो, 50% में सेटल करो ना। सब करते हैं। प्रोड्यूसर और चैनल का लॉस हम कब तक भरते रहेंगे? और क्यों भरें? क्यों भरें? मेरा घर इसी से चलता है, मेरा प्रोफेशन यही है, मेरी ईएमआईज, बच्चों की फीस सब इससे जाती है। आपका लॉस मैं क्यों भरूं? मैं खुद प्रोड्यूसर क्यों ना बन जाऊं भाई? मुझ में हिम्मत नहीं थी तो मैं प्रोड्यूसर नहीं बना।
अपना लॉस आप भरिए ना। प्रॉफिट में से किसने हिस्सा दिया आज तक? 2015 से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो एक हिस्सा है। एक सेट पर गए थे, जय संतोषी मां के सेट पर, रतन राजपूत लीड कर रही थी। तकरीबन 90 सेट्स वी विजिटेड टू चेक वर्किंग कंडीशंस, बाथरूम्स का हाल, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड है, यूनिट को मालूम ही नहीं फायर एक्सटिंग्विशर है कहाँ पर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, उसमें सारी मेडिसिन एक्सपायर्ड हैं, फायर ड्रिल तो आज तक हुई नहीं है किसी सेट पर। अब जब आग लग गई, कोई मर गया, उसके बाद 1-2 सेट्स पर हुई। 2015 से वी बीन प्रेसिंग, फायर ऑडिट करवाइए, फायर ड्रिल करवाइए, हेल्थ एंड सेफ्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेट्स इस पर काम करते हैं। सारी प्रोड्यूसर काउंसिल से कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आज फिर से अपील है उन सब से, हम सबसे केओटिक, सबसे लुक्ड डाउन अपॉन इंडस्ट्री, टेलीविजन खासकर क्यों है? हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम एनिमी 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 कहते रहते हैं, उसका कंटेंट देखिए, अपना कंटेंट देखिए। क्यों हैं हम ऐसे? क्यों हम कंप्लेंट करने वालों को विक्टिम बना देते हैं? क्या हम ये संदेश देना चाहते हैं हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ, हम बदलना नहीं चाहते हैं, यही है जो है, या तो सहो या जाओ। आवाज उठाओगे काम जाएगा। इज दैट द मैसेज broadcasters and producers want to send to the world? This feudal mindset? This is our question. Do we not want to change? या तो कह दीजिए नहीं नहीं बदलना है हमें। एक डॉक्यूमेंट्री है, उपेंद्र चान्ना जी ने बनाई है, उसको तकरीबन 100 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, 100वां आज मिला है, लिविंग ऑन द एज, डीग्लैमराइजिंग बॉलीवुड। उसकी स्क्रीनिंग हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स की अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई थी, जहां सुनील सिन्हा और अमित बहल गए थे हमें रिप्रेजेंट करने, वहां दिखाई उनको, और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख करके दंग रह गई कि हमारे यहाँ वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं। फिया और हमारी सिस्टर कंसर्न्स सैग एफ्ट्रा, एक्टर्स इक्विटी, एक्ट्रा, बड़ी बड़ी यूनियंस, 83 कंट्रीज फिया की पार्ट हैं। फिया ने लेटर लिखा है इंडियन ब्रॉडकास्टर फोरम को कि आप कृपया सिंटा के साथ डायलॉग शुरू करें, कंडीशंस चेंज होनी चाहिए। यहां हमारे एक्टर्स भले ही माने ना माने, जिस दिन भी हम स्ट्राइक कॉल दें, शूटिंग बंद हो ना हो, लेट दिस मैसेज बी वेरी क्लियर, देयर आर सम वेरी पावरफुल यूनियंस बैकिंग अस एंड ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स, सारे चैनल्स जितने हैं हम सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सबका पेरेंट कंट्री कुछ और है एक्सेप्ट 1 और 2। आप सबसे आपके देशों में सवाल पूछे जाएंगे, वहां की हमारी सिस्टर यूनियंस आपसे सवाल पूछेंगी। So please do not ignore us. We don't intend to be a small voice anymore. जिस एक्सटेंट तक जाना होगा जाएंगे। प्रोड्यूसर बॉडीज भी, no, we will fight. If you try to victimize us, we'll still fight back. जो 2 एक्टर हमारे इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, चैनल ने इनका आर्बिट्रेटर, बिकॉज इनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि चैनल सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है किसी को भी, जिस एसोसिएशन का प्रोड्यूसर खुद मेंबर है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, उस एसोसिएशन इंपा को चैनल ने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्लेटेंटली इलीगल, बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप कर सकते हैं। एक्टर्स को फोर्स किया गया कि आप वहां आए आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, इंपा के 19 मेंबर बैठे हैं 2 मेंबर्स का आर्बिट्रेशन के लिए, 19 मेंबर्स। हमारा लॉयर साथ में गया, बोलते हैं हम लॉयर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आर्बिट्रेशन में आप लॉयर को कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? आवर टीम स्टार्टेड वॉकिंग अवे, दे सेड नहीं नहीं नहीं, इनको रोकिए, तो फैमिली मीटिंग है। दे सेड नहीं सर, अगर आप 19 बैठे हैं तो सिंटा का भी पूरे होने चाहिए ना। बोले नो, वी डोंट रिकॉग्नाइज सिंटा, इंपा डजंट रिकॉग्नाइज सिंटा। व्हाई? बिकॉज वी हैव फाइल्ड लीगल केसेस अगेंस्ट देयर मेंबर्स जो रेगुलर डिफॉल्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी सागर, जिसकी पर्सनल गारंटी ली थी इंपा ने कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं दी है हम गारंटी लेते हैं। इस गारंटी पर हमारे एक्टर्स जो शूटिंग रोक कर बैठे थे, उन्होंने काम शुरू किया, फिर भी डिफॉल्ट किया पेमेंट में। वी वेंट टू कोर्ट एंड वील कीप गोइंग टू द कोर्ट्स बिकॉज वी आर नॉट स्केयर्ड। इस कुर्सी पर इसलिए नहीं आए थे कि डर करके चुप हो जाएं या हाथ खड़े कर दें, हमसे तो नहीं होता, हमसे नहीं होता तो अदालत से होगा।
पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आप हमें डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर, आज दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करती है. सो इट्स बेटर दैट यू कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, लेट्स टॉक. जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूनिमाई के थे, आईएलओ के रिप्रेजेंटेटिव थे. बहुत सालों से काम चल रहा है उस पर. फाइनली सेंटा ने उसमें पार्टिसिपेशन किया. कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस का लेटर बना करके हर प्रोड्यूसर एसोसिएशन को हमने भेजा. एक एसोसिएशन यानी इम्पा, जहां से जवाब आया बहुत अच्छा है पर इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है. हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस प्रैक्टिकल नहीं है. दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद. येट वी विल डील एंड वी विल डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट एज वेल. हमसे जितना हो सकता है करते रहेंगे, रिजल्ट्स आएंगे. चाइल्ड आर्टिस्ट्स, वी हैव रिटन लेटर्स टू मिनिस्ट्री ऑल्सो. हर ब्रॉडकास्टर को लेटर लिखे, सर विशाखा गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, लेट नाइट पैकअप होता है, लड़कियों को ट्रांसपोर्ट नहीं मुहैया कराया जाता घर पहुंचने के लिए. किसी से भी कोई जवाब नहीं आया. चाइल्ड आर्टिस्ट से 12 घंटे उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है जो कि इलीगल है. मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें अलाउ किया गया नाबालिग बच्चे काम कर सकते हैं. इकलौती इंडस्ट्री को परमिशन दी गई, पर साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए. 5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते एक बच्चे से. 10 दिन से ज्यादा स्कूल मिस नहीं होना चाहिए. हमारे पास केसेस आए हैं जहां बच्चे का स्कूल का, हाई स्कूल का एग्जाम छुड़वाया गया सीरियल की शूटिंग के लिए. 18 घंटे 20 घंटे काम कराया गया, उसके बाद 2 साल तक पैसा नहीं दिया गया. रियलिटी शोज, सीरियल्स, रोज जिन बच्चों को काम करते आप देख रहे हैं, जो एंटरटेन कर रहे हैं आपको, वो स्कूल कब जाते हैं जरा सोचिए. मिनिस्ट्री क्यों सो रही है? क्यों हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया? कब जागेंगे? सिर्फ कहते रहेंगे बच्चे देश का भविष्य हैं. भविष्य रोज मेकअप रूम में पिसता रहेगा. प्लीज वेक अप. एनीवेज, कुछ कदम लिए हैं सरकार ने, उसके लिए मैं थैंक यू भी कहूंगा. आग जब लगी थी, आई थिंक सिनेविस्टा में लगी थी जी, जो फायर ड्रिल्स हम 2015 से कहते आ रहे थे, अगर फायर ड्रिल्स हो गई होती वहां वो 20-22 साल का लड़का नहीं मरता. डॉक्टर किरीट सोमैया जो कि एमपी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर लेबर के चेयरमैन भी हैं. फाइनली उन्होंने इंटरेस्ट लिया, कुछ स्टूडियोज विजिट भी किए, माली खस्ता हालत देखी, हमें इनवाइट किया, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई. आईएनबी मिनिस्ट्री के और लेबर मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल्स भी थे. पूरी जो तस्वीर आपको बताई है वही उनको भी बताई, और ये डिमांड की कि सर पहली बात तो इंडस्ट्री स्टेटस दे दीजिए. मालूम तो चले किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. अब तक तो यही नहीं मालूम. लेबर मिनिस्ट्री के पास जाएं, आईएनबी के पास जाएं, या कल्चर मिनिस्ट्री के पास जाएं, कहां जाएं सर? करोड़ों और हम सब की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्टर्स की नहीं, ऑल ओवर इंडिया. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग यू गाइज, आप सब, we have demanded a separate act which lays down our rights clearly, duties of the employers clearly. कितने घंटे काम होगा, कितने दिन में पेमेंट मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी. आखिरी बार आप में से ना किसने कहा था कि सर मेरे वर्किंग आवर पूरे हो गए हैं, ये असाइनमेंट मैं कवर करने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी? किसने कहा था आखिरी बार? So we are talking about you also, and we need your support in this fight. Web, digital, live performances, सबको इंक्लूड करना चाहते हैं एक सेपरेट एक्ट, ताकि कहीं भी शूटिंग हो, कहीं भी आप क्रिकेट का मैच कवर कर रहे हैं या इंटरव्यूज लेने जा रहे हैं, चाहे यहां, चाहे कोलकाता में, चाहे कहीं और, सेंट्रल गाइडलाइंस हो क्लियरली, जहां मुझे ना कहने का हक हो, जहां मुझे पता है कि कानून मेरी ना को शक्ति देता है, क्योंकि ना एकमात्र शब्द है जो जिंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है. और इसके लिए कलेक्टिव पावर बहुत जरूरी है. जो आज अकेले हैं, जो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है, उन सब एक्टर्स से अपील है, आइए जुड़िए. साथ होंगे तो शायद ना कह पाएंगे, अकेले अकेले तो ना कहने की हिम्मत ही नहीं होगी. अपने स्टार्स से अपील है, सुपरस्टार्स से अपील है, जो हमारी ना को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं. प्लीज जुड़िए, अपनी एसोसिएशन की ताकत बनिए. ऑलरेडी हैं, सपोर्ट करते हैं. यंग ब्रिगेड,
उनसे बहुत उम्मीद है। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज की लड़कियों को ना कहना आता है। हमारी जो यंग ब्रिगेड है स्टार्स की, उनसे अपील है, आइए, आगे आइए, अपनी बाइट्स, अपने वीडियोस हमें दीजिए, दैट यस यू विल बी द चेंज, यू विल बी द फेस ऑफ द चेंज एंड वी विल चेंज द इंडस्ट्री, बिकॉज वी कैन, वी मस्ट। हमारे जितने कलाकार हैं, सीनियर्स हैं, उन सबसे अपील है, इंटरव्यूज में भी कहा है, वो बातें दोहराता रहता हूं बट वो सच है। हम में से बहुत से लोगों के बच्चे ये सपना देख रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री का भाग बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे, एक्टर्स बनेंगे, प्रोड्यूसर्स बनेंगे। Let us decide what kind of industry we want to give them. Let us take some action so that we can face our daughters, our sons, our wives, our sisters with pride. We might fail. Success might take a long time. But let's at least try. International Law Alliance, it's a big alliance. A lot of countries are its members. Mr. Jamshed Mistry, we have empaneled him also as one of our lawyers to fight the big cases. Thank you so much, Jamshed ji, for offering your services. Our Delhi office is now open. A lot of memberships are coming there. Hopefully, हम अच्छी तरह से चला पाएंगे because Delhi में बहुत सारी shootings होने लगी हैं. Web, again, as we said, the whole law we want, उसमें web platforms, everything should be included. Web एक नई शुरुआत है और अभी खबरें मिली हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करते हैं अपनी अपनी कंट्रीज में, उनके प्रोड्यूसर्स यहाँ भी वही 17-17 घंटे काम करवा रहे हैं वेब सीरीज के लिए भी। और एक्टर डरता है कंप्लेंट करने से क्योंकि फिर बॉयकॉट हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। So an appeal to all broadcasters, sir, we want international guidelines, period. You have accepted them in other countries, what's wrong? What's wrong? Why not in India? Because हम तो किसी भी कंडीशन में काम कर लेते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, बारिश हो, धूप हो, पानी हो, कुछ भी हो, 12 घंटे, 14 घंटे। ये हमारा प्लस पॉइंट अब छोड़ दें तो बेहतर होगा। यहां से आप 26 नॉटिकल माइल बाहर जाइए, उस देश में जो सुविधाएं हैं जो आप एक्सेप्ट करते हैं सारे वर्कर्स के लिए, यहां क्या आफत है? यहां क्यों नहीं भाई? रॉयल्टीज क्यों नहीं मिले क्रिएटिव्स को? दूसरे देशों में मिलती हैं, यहां क्यों नहीं? मेरे कंट्रीब्यूशन से, कैमरामैन के कंट्रीब्यूशन से, डायरेक्टर के कंट्रीब्यूशन से, राइटर के कंट्रीब्यूशन से एक अच्छी फिल्म, अच्छा सीरियल बनता है जो हिट होता है, जो आपको जिंदगी भर पैसा कमाता रहेगा आपके लिए, उसमें मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? जब मेरा बुरा दिन आएगा उस दिन मुझे कहां से सहारा मिलेगा? Yes, we want everything. Now we want it all. So yes, for everything, let's learn to say no. Time's up. Let us be the change. Thank you. नमस्कार सारे दोस्तों। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मड आइलैंड पे शूटिंग कर रहा था, 2 बजे को छोड़िए बोला था लेकिन वो हुआ नहीं, और फिर ट्रैफिक, इसलिए देरी से आ पहुँचा, फॉर विच आई एम रियली सॉरी। अभी तक तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सुशांत सिंह ने सिंटा क्या क्या कर रही है, नई सिंटा बॉडी क्या क्या कर रही है पिछले 2 साल में, ये आपको बता दिया है। इससे पहले भी सिंटा काम ही करती थी। मैं करीबन 40 साल से सिंटा का मेंबर हूँ। पहली बार यहाँ इलेक्शन में खड़ा हो गया और सभी लोगों ने चुन के दे दिया प्रेसिडेंट करके।
I'm trying my best to use my connections and पहचान जो है सभी जगह जहाँ जहाँ हो सके. काफ़ी सारा मामला अच्छा चल रहा है. आज तक मेरे हिसाब से ऐसा कभी हुआ नहीं है, जिससे मैं भी गुजर गया हूँ, कि सिंडा ने मैंने तकरार अगर दाखिल की तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकला. कभी नहीं हुआ और ना ही होगा. पूरी उम्मीद है कि हम हो सके उतनी सारी कोशिशें करेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं और जो बनेंगे उनके लिए हम सारी शक्ति लगाकर उनकी तकरार जो है उनके बारे में हम काम करते रहेंगे. प्लीज़ बिलीव अस. और भी कुछ फिनेंशियल मैटर्स, ये वो जो यहाँ पैसे अटके पड़े हैं, जो भी कुछ है, वो पैसे सिंडा को उसके अपने हैं, वो कैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट से हो और कहीं बॉडी से हो, जितना हो सके उतना सिंडा के जो पैसे हैं वो सिंडा के मेंबर्स के लिए कैसे मिले, इसकी कोशिशें जारी है. मिनिस्ट्री तक हम गए हैं, तो यकीन कीजिए कि सिंडा इज़ नॉट an organization where some people come and sit on the chair for 5 years. ऐसा नहीं है. ये सारे हमारे लोग हैं, हम उनके हैं, सारे एक्टर्स, छोटा हो बड़ा हो. अपील ये है कि जितने सारे लोग हैं हमारी बिरादरी जो एक्टरों की, वो सारे हमसे जुड़ जाए, जैसा अभी सुशांत ने कहा. और हमारी एक ताकत इतनी बड़ा है कि किसी की हिम्मत ना होगी कि हमारे ना कहने पर वो कोई एक्शन ले. ये हमारी कोशिश चालू है. मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी जो तकरारें हैं उनको सुनने के लिए, उसको लोगों तक पहुँचाने में मदद करने के लिए आप यहाँ आए. इसलिए सिंडा की बॉडी की तरफ से, खुद की तरफ से मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सर. इतना कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भूल जाते हैं. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई all of us love him for what he is. Good thing is that before we start the Q&A, a small announcement that it's the first time that Cinta is doing something called the Act Fest, which is a festival for actors, by actors. I think the first time this is happening in our country. I don't think it's happened ever before. We're tying up with Yogi Chopra, Preeti and Bharani of the 48-Hour Film Project, which is an international festival. We want to celebrate the Indian performer. The world recognizes Cinta and the Indian actor. The face of Bollywood, which people recognize world over as this place where they have the Swiss Alps and great dance movements and, glamour and glitz. Now the world, after watching Upendraji's documentary, our motions, Cinta's motions in the world forum of the performers. 83 countries now recognize the problems faced by the Indian media and entertainment industry, and it's not only actors. The actor is the face of the media and entertainment industry, as we all know. We are supposed to be the posters boys and the poster girls. There's a lot of sweat between the grits and the glamour that we are aware. But you people from the media who cover us, who give us all this footage from the social media, from the print media, and also from the electronic media, your problems, your issues, we have also tried to highlight in the international forum. Hence, it's an appeal from all of us to highlight our issues, including the issue of sexual harassment and child abuse in the international arena, as well as hope our appeal reaches the stakeholders. Apart only of sexual harassment? Right now, yes. Okay. Yeah. So when it comes to sexual harassment, it's very simple that we have something called a joint dispute settlement committee mechanism. We are a trade union. We are a trade union that works for the welfare of actors. We are all of us sitting here are all honorary members. Okay, so these are obviously one of our brethren who comes and complains to us. The usual format is that if a actor complains about
a certain thing, let's say sexual harassment in this case, it's now because of you people and because of the Me Too movement. And okay, let me just give you like Sushant told you, in the last 1.5 years, we've tackled a couple of sexual harassment cases. This is before all this happened. What has happened in the last 4 weeks, I'm talking about what happened 4 weeks prior to that. We've tackled it. There was sometimes that there was a complaint against the casting director. We went with our member to the cops. It was sorted there and there. That person apologized. And we had enough footage. We told him that if you do continue with this, you'll be publicly shamed. There was an actress who was shooting outdoors. She was being harassed. She spoke to Sushant. We advised her to fly overnight. He says, we'll tackle the producers and the situation later. First, come into a safe zone. Okay? Now, right now, we are in this position. We are not judges, right? We are not the cops. Who is right, who is wrong, that's a decision that the police and the courts will take. Our problem is, and the reason that we are here is that our member at that particular point of time should feel safe and secure. Okay, for example, a girl is being harassed at a shoot in Mira Road at 12 in the night. Cinta should be there for her at that time, or for him at that time. So that's the reason why we started something called an outreach program. An outreach program is that we've divided Mumbai into 10 zones. Each zone has about 1,000 members. There's a zonal head, then there's a group head, unit head. So each member of Cinta is connected to 10 members in his or her vicinity, which is the residential vicinity. If she is shooting in a vicinity, in a region which is not close to where she stays, then we connect to that particular zone. See, what you see here is our zonal structure. So these are all the zonal heads that we've got. We're trying to use the MLN, multi-level marketing kind of a thing. This is something that Mr. Ghanshyam Srivastava brought to us, Sushant implemented. Right now we are connected to about 9,000 members. But how are we going to tackle cases of sexual harassment? Right now, everybody is acting on an impulse. Sushant reacted on a personal level because he feels strongly about it. All of us are trying to form a committee as an executive committee, as a responsible body, because we genuinely feel for it. We've also got to answer to our counterparts in SAG-AFTRA because they are the ones who've pioneered the Me Too movement. They're coming to India, they're helping us set up guidelines, how to recognize sexual harassment, do's and don'ts. The Producers Guild of India was the first one who said that yes, we want to we recognize this problem. But nobody knew that this is going to blow up in our face, right? किसी को नहीं पता था कि ये पिछले 1 महीने में ही हो. We knew that this danger was looming. Sushant has mentioned to the IFTPC in 3 meetings, please discuss sexual harassment. I mentioned to the guild, please discuss sexual harassment. We've started these steps a year ago because we knew that this was going to blow up in our face. We knew that someday somebody is going to have the guts, come out of the closet, break this thing open, and people will follow suit. Why not take preventive and corrective measures? The reason why we're having this press conference is that all major stakeholders need to get together, identify the correct statements of sexual harassment, and what is it? Is it consent? Is it molestation? Is it harassment? What is the history? What is the way forward? That's the reason why we need people from outside our industry to give us a perspective also. And that's what Sushant exactly mentioned, right? My second and quick question will be, of course, I mean, you know, you all are working very hard for the last 3 years to improve things for at least your community. But I don't know how it goes, the election process, etc. But how does this committee make sure that the decisions that you all are implemented will be taken forward by, say, the next committee? But that's part of the constitution. We see, if we make certain amendments, like for example, we made this amendment. It was Sushant's idea that, listen, we've had enough of this honorary job and taking brickbats from the producers and the broadcasters, because many of us are going to be out of job very soon because the way we tackle them. Many of the producers and broadcasters understood that, no, these guys, mean good sense. And primarily, most of us in the committee do a lot of work in television. And even our members who work for cinema also are, at the end of the day, answerable to studios. And studios are international studios. We start making any law, byline, rule, regulation, let's say a vigilance committee, which goes anti-broadcaster, anti-producer, anti-employer. This rule could be, overruled by the next committee. But we're making sure that that's the reason why we've got 3 legal people on board.
So they give us a correct way of how we can take the constitution forward, so that anything that is in the betterment of the performer community, that thing will never go out. Obviously, the next committee which comes in, which I hope, and we're trying to nurture some really young talent. You know, we've got our little boy over here in our committee, Romit Raj, who's a very active, enthusiastic member. So he's also learning from our mistakes. Okay, we're all committing mistakes every day. So, like Sushant said, कि उसकी व्यक्तिगत राय थी when he tweeted about certain things. He's an actor, he's emotional, all of us are. So we're not the law, we're actors. We're trying to work within the framework of the law, within the framework of the police, to create a healthy environment. And I'm sure that the next committee will also follow suit. He started the Me Too movement, but no one else from the Marathi film industry has been accused of anything till yet. So what is your response to Nana Patekar? Did you complete? Yes. थैंक यू। पहली बात तो ये है कि ये जो केस है दोनों की, दत्ता और पाटेकर, ये न्याय प्रविष्ट मामला है। उसके बारे में ना मैं कोई कमेंट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी द एफआईआर हैज़ बीन फाइल्ड और नोटिसेस जा रही है, आ रही है वगैरह। एट दिस मोमेंट आई हैव आस्क्ड माय ऑल कोलीग्स not to interfere and not to opine unless and until we are by law allowed to talk about this case. So at this moment I will not take anybody's side, anybody's. 2008 में क्या हुआ उसका हम स्टडी कर रहे हैं, बिलीव अस। 2018 में अभी वापस ये खुलकर आया है, 10 साल के खुलकर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई उठे और कहीं 25 साल पहले कुछ हुआ उसके बारे में। इससे होता क्या है मैं बताता हूँ, सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। So at this moment I am not ready, neither my colleagues are ready and allowed to talk about this particular cases. अभी जुडिशरी में गया है मामला, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं, किसी की भी बाजू नहीं लेंगे, किसी के विरोध में नहीं बोलेंगे। लेकिन किसी पर भी अगर ज्यादती हो रही है, मेल फीमेल, तो उसकी दखल तो हमें ज़रूर लेते रहेंगे, बिलीव अस। थैंक यू वेरी मच। Sushant sir, will you impose any? एक मिनट, तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर, ये दो नाम अभी हम नहीं लेंगे। वी विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन बिकॉज न्याय प्रविष्ट मामला है। इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। Sushant has already given a statement that the committee that was there at that time did not pursue this case correctly. Only monetary issues were resolved. We've also said that both the sides were not heard. Neither Mr. Patekar nor Tanushri. He's also said that the case is now with the police. We are cooperating with the police. We've received a letter from Mr. Patekar's lawyers as well as Tanushri's lawyers. The case is sub judice. So there's no point in actually bringing this up. Who did what and what did who. We are talking about a big issue called sexual harassment, my friend, and you are a member of the media. Expect little bit of more sensitivity rather than getting into and respecting, a senior artist, his plea that let's not discuss that. That's sub judice. Whoever is correct will come out in the open. Yes, of course, we are addressing the Me Too movement. Exactly. No, what I'm saying is that let's not discuss this now because we. Bhai, no. What we're trying to say, my friend, is that it is sub judice. Who is right? Yeah. So let's wait. Yeah, thanks. Yeah, sure, please. की बातें सुनकर के सिंटा जो बॉडी है वो खुद ही उनके अंदर ही बहुत से इश्यूज, आई मीन टू से, वो बहुत से अपने कुछ काम करना चाह रही है लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल रहा है बहुत सालों से। जी।
तो डू यू फील कि देर आर बिग प्रोडक्शन हाउसेज या जो बड़े एक्टर्स हो, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो सोचते कि अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको अप्रोच नहीं करते, कि दे फील कि दे आर मोर सुपीरियर, दे आर मोर पावरफुल, दे कैन हैंडल द सिचुएशन ऑन देयर ओन. तो ऐसे में डेफिनेटली जैसे आपने अपील की है सभी लोगों से, तो लेकिन ये बहुत सालों से चलते आ रहा है. ये मोमेंट लगता है कि ये जो अभी फिलहाल का ये जो दौर चल रहा है, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट एक्चुअली. जी, यस, वैलिड पॉइंट. जो पावरफुल, देखिए कोई भी एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन वो सबसे कमज़ोर मेंबर के हकों की रक्षा के लिए होती है. उसका मेन काम ही है. हक किसका मारा जाता है? जो सबसे कमज़ोर है. जो सबसे ताकतवर है वो तो नियम डिक्टेट करता है. उन्हें तो प्रॉब्लम्स पहली बात तो होती ही नहीं है, हुई तो वो अपने लेवल पर सॉल्व कर लेते हैं. उन्हें सेंटा के पास आने की ज़रूरत नहीं. और हम ये बात रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सच है. हम उन्हें मजबूर भी क्यों करें कि जो चीज़ आप खुद हैंडल, ये कोई स्कूल तो है नहीं कि हम हेडमास्टर हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास लेके आइए, हम ही सॉल्व करेंगे. इफ़ यू कैन सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम, फैंटास्टिक, दैट मीन्स यू आर अ पावरफुल पर्सन. इसीलिए मैंने अपील किया कि भाई जो पावरफुल लोग हैं वो और हमारी ताकत बने. ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं और खुलकर सपोर्ट करें तो हम और पावरफुल होंगे. और ये सेंटा की इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं है. दिस इज हाउ एनी इंडस्ट्री फंक्शंस. जो सहयोग नहीं मिल रहा है वो जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर्स, वहां से सहयोग नहीं मिल रहा है. क्योंकि भाई बदलाव तो एम्प्लॉयर ही ला सकता है, एम्प्लॉय चेंज नहीं ला सकता है. एम्प्लॉय अपील कर सकता है, एम्प्लॉय एक मूवमेंट चला सकता है. और इस मूवमेंट में जो हमारा स्टांस रहा है, ऐसा इंटेंशन नहीं था भाई कि सेंटा लाइमलाइट में आ जाए या कुछ हो जाए. ऐसा हो गया. इट जस्ट हैपेंड एंड वी आर हैप्पी. इट वॉज अ बोनस. इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो हमारे बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो भी सेंटा के काम की तारीफ कर रहे हैं, खुलकर सामने से बोल रहे हैं. रवीना टंडन जी ने अपने इंटरव्यूज में कहा, और सेंटा को अप्रोच कर रहे हैं. फ्लोरा सैनी जिनके साथ 2007 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था, उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि कोई मेरी सुनेगा भी. उनको भी हिम्मत हुई आने की. वेंकटानंदा जी ने कहा कि सेंटा का स्टैंड देख करके मुझे हिम्मत मिली कि नाउ आई कैन कम आउट. इफ दैट हैज हेल्प्ड आवर पोजीशन, आई एम हैप्पी. बिकॉज जितने पावरफुल होंगे यार उतना मदद कर पाएंगे, बदलाव ला पाएंगे. और ये हो रहा है एक्चुअली. जितने काफ़ी बड़े एक्टर्स, इनफैक्ट जब हमने पहली बार ई वोटिंग स्टार्ट की लास्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, बिकॉज हमारे मेंबर्स आउटडोर्स जाते हैं, तो मिस्टर बच्चन खुद सामने आके उन्होंने बाइट दी कि भाई थैंक यू सेंटा, मेरी एसोसिएशन इतना आगे जा रही है और यू आर डूइंग दिस ग्रेट थिंग. सी वी आर होपिंग वंस वी गेट द मेजर स्टेक होल्डर्स, एवरीबडी विल बेनिफिट. दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू. जिस दिन जो वो बड़े वाले आदमी को इस बात का एहसास होगा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं हमारी जमात के लिए, I think that's when we'll achieve certain amount of success. If you have so many numbers, shouldn't you guys be a lobby, shouldn't you be a pressure group that sort of brings in this change? Because no amount of workshops and all of that is going to help if, like you said, you don't change things on ground. I got your point. आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है. बिकॉज वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है. मेंबर तो हैं कुछ 8-9 हज़ार के बीच में मेंबर हैं, बट बिकॉज सेंटा शायद हमेशा सिर्फ एक कंप्लेंट सेंटर बना रहा, और वो भी सिर्फ मॉनिटरी कंप्लेंट्स, उससे आगे कुछ हुआ नहीं. समवेयर अ लॉट ऑफ मेंबर्स लॉस्ट फेथ ऑल्सो इन सेंटा. क्योंकि कई बार, और अभी भी ऐसा होता है, आई विल नॉट ब्लेम ओल्ड कमिटीज़, अभी भी ऐसा होता है कोई केस 1 महीने में सॉल्व हो जाता है, किसी केस को 6 महीने भी लग जाते हैं, साल भर भी खींच जाता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि सामने वाली पार्टी कितना विलिंग है डायलॉग में. तो जिसका 6 महीने लग गया, 1 साल हो गया, वो तो फेथ खो देता है. वो तो यही बोलता है सेंटा से कुछ नहीं हुआ. फिर कंप्लेंट करते हैं, सेंटा में कंप्लेंट डाली, आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं. वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सामने नहीं आना चाहते, कंप्लेंट नहीं करना चाहते. सेंटा ने बोला स्ट्राइक करते हैं. एम्प्लॉयर कौन है? प्रोड्यूसर है. कल कोई निकाल देगा तो सेंटा क्या कर लेगी? यूनाइटेड नहीं है. ये जोनल स्ट्रक्चर वगैरह सब इसलिए शुरू किया, ऐसे काम करने शुरू किए जिससे मेंबर्स को भरोसा है, यूनाइटेड हो. वर्कशॉप्स करते हैं, एक पॉजिटिव सेंटर बनाया है सेंटा को. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, एक्टिंग वर्कशॉप्स, वॉइस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स. वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लेस वेयर पीपल कम एंड मीट. 3 ही साल हुए हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. और अब शायद
चूंकि आप सब लोग आ गए हैं, इतने सारे कैमरास पहली बार सेंटा को कवर करने आए हैं, सो शायद मेंबर्स को थोड़ा और फेथ आएगा कि यार अगर किसी ने काम से निकाल भी दिया तो शायद ये 4 कैमरास बुला लेंगे प्रोड्यूसर के ऑफिस के सामने और उसे वापस रखना पड़ेगा. सो यूनाइट करके एंड सेट्स, एज आई सेड 90 सेट्स वी विजिटेड. पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव उसकी रिपोर्ट बनाई विच वी आर सेंडिंग टू प्रोड्यूसर्स कि सर ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये फायर को लेकर के, ये सेफ्टी को लेकर के, फाइट मास्टर्स यूज़ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. समय समय पर उन्हें बताते रहते हैं, पर इम्प्रूवमेंट्स फ्रैंकली बोलूँ तो नहीं जी, नहीं हुए हैं. बहुत कोशिशों के बाद उस काम का क्रेडिट कोई और ले गया, कोई बात नहीं. बहुत कोशिशों के बाद फाइनली फिल्म सिटी में एक 24 आवर एम्बुलेंस ज़रूर आ गई. कुछ नए टॉयलेट्स बन गए वर्कर्स के लिए, यूनिट के लिए, क्योंकि उनके टॉयलेट्स की हालत बहुत ख़राब थी. सो दिव्या ढोले हैज़ बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ आवर्स. शी इज़ पार्ट ऑफ ऑनररी मेंबर ऑफ आवर कमिटी ऑल्सो. तो ये चीज़ें अचीव करने में, गवर्नमेंट तक ये ध्यान ले जाने में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग कराने में इतना तो हुआ है. Sexual harassment on set. As I said, guidelines, it's a new thing for us, frankly. सबसे पहला अवेयरनेस. मेंबर्स जब तक अवेयर नहीं होंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, एंड वी आर सीरियस अबाउट इट, यू कैन अप्रोच अस. सो पोस्टर्स ऑन सेट्स, that's a must. We are going to do that. Guidelines, our legals will help us prepare those guidelines जो easily समझ आ सके, और उसका punishment क्या है ये भी बड़ा ज़रूरी है. ये गाइडलाइंस, वर्कशॉप्स, धीरे धीरे माहौल सुधरेगा मैम. ऑन सेट इमीडिएटली हेल्प के लिए वी हैव आवर जोनल स्ट्रक्चर वेयर दे कॉल अस एंड वी मेक श्योर वी इमीडिएटली टॉक टू द प्रोड्यूसर और द प्रोडक्शन स्टाफ एंड वी सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर. इफ आवर पीपल नीड टू बी सेंट, अदर वॉलंटियर्स टू सॉर्ट आउट द सिचुएशन, वी डू दैट. बट how can we prevent it from happening? We are working on it. Just for background, did any of the sets you visited, do any sets now have those posters about the Vishaka guidelines or about sexual harassment? No, all Do this any has of happened them- in the last. See, this entire thing is, we've Sunil Sinha and we've just returned from Tokyo. We've drafting a complete thing on do's and don'ts. Sure. Correct conduct, recognizing sexual harassment. Since we've started it, sitting with Mr. Mistry, sitting with Sana and her team, we are going to draft these guidelines. The Producers Guild has said us that we are okay with you drafting these guidelines, putting it on every set. All this, ma'am, has just happened in the last 1 month. It's just blown in our face. So that's the reason why we called for this, so that we can get proactive, introduce these guidelines on pre-production, production, post. But you'll be surprised to know that there are some production houses like Excel Entertainment or like Sphere Origins in television. Every department has a poster on recognize sexual harassment, do's and don'ts, good conduct, bad conduct. We're going to approach them also to find out what they've done. Okay. And now we'll collectively sit with the on-set people, off-set people, people in pre-prod, office and post, so that it's there everywhere. And for some women who don't understand or illiterate, because we have the buys and some spot women, and how these men and women, for them, a pictorial, a comic book kind of a, guide, we're on it, Hi, sir. Question. One thing that has always said when it comes to sexual harassment in the world, if I can say so, is because of the patriarchal mindset that we have. Before I start the question, I really appreciate the stance that you've taken. It's really good, and we hope that the work continues. But one thing that comes to my mind is, or even if I look at the poster, there are very few women to represent us. Even in the committee, like Rajashri ma'am is sitting over there, and there are all men. The patriarchal, I know everyone is there, and we really appreciate. But even if I say, I can see like 4 or 5 women in the committee itself at the top level. One thing that has always affected. Is it possible for anybody from you to define sexual harassment? As per my knowledge, if I keep looking into your eyes for 14 seconds, that is sexual harassment. That is the law. So now when I am doing a scene with you, I have to do this now. Okay, hello, कैसी हैं आप? मैं आपका जो सवाल है ये बार बार करता रहूँगा. If I keep looking into your eyes for 14 seconds, it is sexual harassment. अब क्या करें इसको?
This is what all I know about the law. No, I understand your question and appreciate. Yes, you are right. For that, yes, we will try to remedy the situation in next elections. But even before that, the committee to address sexual harassment that we are forming, it will follow Vishakha guidelines. 50%, more than 50% of members in that will be women. It will be chaired by a woman. The subcommittee which we are forming, Swara Bhaskar, which is a part of that, and we'll take her advice. Our office bearers will automatically be members of every subcommittee. But here, only women can tell us what are their issues, what is troubling them. So we will talk to more and more female members. Nupur and Payal and Rajeshwari, they are the women here, and Hetal Parmar. No, Neelu Kohli. So we have already in a committee of 21 people, we have 5 or 6 women. So not bad. एक और problem है कि नहीं सुशांत, see, because all of us, see, this is it's elected body to get, you do not know how difficult it is for Sushant and me to request these women to leave their families and come for a meeting. See, it's a trade union, we are not employees. In Sinta, in terms of the ratio of employees, the women to men ratio is more. We have 3 women and 2 males. So that is the employees. We're all actors. We're doing this honorary. So, but yes, in our committee to address sexual harassment that Sushant is talking about, obviously, I think it's going to be a 80-20 ratio. 80 women, 80% women and 20% men, so that it is addressed correctly and women can come to their, brethren and talk and open out. Right, Sushant? मेरा सवाल एमजे अकबर जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या कुछ मापदंड सिंटा के लोगों ने तय किए हैं कि कोई भी कलाकार इसके तहत जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा इंडस्ट्री से, या किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? क्या वो कलाकार आने वाले दिनों में फिल्मों से जुड़ा रहेगा, या अपने फिल्म जो उसके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, फिल्म कॉन्ट्रैक्ट जो उसने साइन किए हुए हैं, उन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ होगा? जी भाई, ये सब स्टेप्स अभी लेने शुरू किए हैं। कौन सी गलती या कौन सी हरकत किस सज़ा के लायक है, ये भी तय करना होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, उसके बाद सेक्सुअल मोलेस्टेशन आ जाता है, रेप है, ये अलग अलग लॉ में भी इन सब की अलग अलग सज़ा है। हमें बतौर इंडस्ट्री हम किसी को फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं दे सकते। एज अ ट्रेड यूनियन वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। मैक्सिमम पनिशमेंट जो हम दे सकते हैं किसी को भी कि आपने हमारा सर नीचा किया है या बहुत गलत काम किया है, आप एसोसिएशन की मेंबरशिप से बर्खास्त किए जाते हैं। दैट्स द मैक्सिमम वी कैन डू एज अ यूनियन। एज इंडस्ट्री नाउ वी हैव टू सिट टुगेदर एंड थिंक। एज आई सेड कि हम जो कमेटी बनाना चाहते हैं अपनी, वो इतनी पावरफुल हो कि जिस दिन सेंटा ने कहा यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम सेंटा, दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो दैट डर ज्यादा हो। तो इसका मुद्दा क्या है यार? प्रिवेंशन। सर, ये कलाकारों के ऊपर फिर कार्रवाई जैसा कुछ हुआ नहीं ना? फिर आपने तो सेंटा से उसको बर्खास्त कर दिया, और वो कलाकार अगर अगले दिन फिल्म कर रहा है तो उसमें कार्रवाई जैसा क्या है? तो भाई आप उसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे या प्रोड्यूसर को? एम्प्लॉयर वो है या मैं हूं? तो कहीं ना कहीं आपके प्रोड्यूसरों से कुछ बात हो रही बोला है? तो भाई आई थिंक दैट वाज कि मिल करके काम करना होगा इसमें। प्रोड्यूसर्स आर द एम्प्लॉयर्स, बदलाव वही ला सकते हैं। वी आर नॉट द एम्प्लॉयर्स, और देश के संविधान के हिसाब से हमें किसी से भी काम छीनने का हक नहीं है। वी कैन बी सूड फॉर दैट, यू अंडरस्टैंड? बट वी हैव टू बी पावरफुल एंड यूनाइटेड इनफ एज इंडस्ट्री that if somebody is wrong, proven wrong, repeat offender, then nobody should employ him, because then you are sending a wrong signal that you can get away with it. We want ऐसा atmosphere बनाना चाहते हैं, ये कोशिश है भाई। Sir, like you just mentioned that what the maximum that Sinta can do is probably not make them a member of your committee as well. While I know that this matter is sub judice right now, is Nana Patekar still part of Sinta, or have you expelled him yet? No, we can see when the police investigation is going on, and initially also first we reached out to Ms. Datta, heard her side, opened the case file, not the case file, studied everything, and we realized that sexual harassment complaint was not addressed at all. The least we could have done at that time was at least send a letter to Mr. Patekar,
and ask him, sir, what is your side? What do you have to say? Similar to the choreographer and the director and the producer. उनके against भी allegation था. Unfortunately, कोई भी media उन union से नहीं पूछ रहा है कि सर आपने क्या किया, प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने क्या किया प्रोड्यूसर के अगेंस्ट, या उसको लेटर भेजा, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं किया. हमने देखा हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला सॉरी. उसके बाद तनुश्री जी को बोला आप दोबारा कंप्लेंट फाइल कीजिए. हमने भी लीगल को कंसल्ट किया कि भाई 3 साल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी ट्रेड यूनियन हैज टू फॉलो एवरी वर्ड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर फ्री टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वे वी वांट, लेकिन एक बार बन गया वी कैन नॉट ब्रेक इट. सो 3 साल से पुराना केस नहीं ले सकते. केस वॉज क्लोज्ड. वी ऑफर्ड हर टू फाइल अ फ्रेश कंप्लेंट. अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम वी सेंट अ लेटर टू मिस्टर पाटेकर ऑल्सो कि सर दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू योर यूनियन प्लीज लेट अस नो, वी आर मोर देन विलिंग. उनका जवाब भी आया 4-5 पन्ने का, लेकिन ये सब उनका जवाब, तनुश्री की रिक्वेस्ट टू रीओपन द केस, everything came after the police investigation started. When the investigation is on, we cannot interfere. We cannot pronounce Nana Patekar guilty, or we cannot say Tanushri's complaint is false. We cannot take any stand. So there's no question of taking any action against anyone in this. We cannot expel Mr. Nana Patekar when investigation का result ही सामने नहीं है. Procedure is to be followed. Otherwise, Mr. Patekar can turn around and sue us. That hello, investigation is going on, nobody's pronounced me guilty. How can you take an action? So our union might be, dissolved. Can't do that. In the beginning you said here the verdict on it. So many people, not just Vinta, there are so many others who have validated and come out and spoken against him. In that case, there are times in India where the cases take years to be closed and verdict to come. How do you help actors, Right. or even if you know that it's true and the verdict is coming after 20 years, how do you help actors in those times? Because since you're saying that you can't take action. No, I never said I can't take action or we can't take action. I never said that. You may be misheard or misunderstood. That is his reply. And I mean, it's very rare that, forget this complaint, any misbehavior complaint or any fight between two actors or producer, employee or an actor, it's never the case that somebody said, sir, इसने मुझे मारा था, and we send a letter, आपने मारा था, क्या reply देगा वो, सर मैंने नहीं मारा था. That's standard. It's a standard reply sent by Mr. Alok Nath's lawyer. Not even him personally. But he has responded to our show cause notice. Now we have to decide what action we have to take. क्योंकि मैंने उसके बाद ये भी कहा था, my EC, I don't dictate my EC. Also in media, I announced today, let me reiterate that. Because I also already took a personal stance. I pronounced him guilty. In my eyes, he's guilty. So now, ethically, when we talk as an organization, ethically, morally, I don't have any right to sit in any jury which is going to take any action for or against Mr. Alok Nath. Because I have pronounced him guilty. So it would be immoral for me to sit in that jury. I will not. I will convey my stance to my committee. I also said a strong message needs to be sent that this behavior will not be tolerated. There is a pattern to what he has done. Now I'll let my president and the EC members and our legal advisors to sit together and decide legal framework ke andar, apne constitution ke andar, what is the best we can do. Based on their investigation, they would arrive at a particular decision. So, like in a particular case, like the accused, can the accused, he or she, come back and hate at you that how come you have arrived at a decision when the court has not yet pronounced a final verdict in the particular case? No, we don't. First of all, we don't take sub judice cases. Okay. If somebody has already approached the courts, Okay. the union cannot interfere. And when anyone goes to the court, lower courts, courts also ask in such disputes. First question is, are you member of a trade union? Okay. Yes. First go to your trade union, please. Let them decide. And then if the member is not happy with our verdict, you are free to challenge it in the court of law. Okay, Yeah. Thank you. Hello. I'm Upendra
taken all steps forward to bring your documentary to the international arena, apart from what efforts that you have done. And this is, and you will appreciate the fact that Sinta is the only proactive union, and this current committee is... Absolutely, I want to tell the press, I'm very objective because I've been part of Federation, headed all these organizations, ultimately resigned it. A ray of hope was ignited in me when I saw these people sitting on the dais. I salute you people, sir, for having taken up all these initiatives, you know. किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी अगली कमेटी आएगी तो वो क्या करेगी? सर हम वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर. एक जवाब देना चाहता हूँ. जी आप दीजिए. What we are, Sinta is the flagship union of let's say the entire trade union movement for the media and entertainment sector, because we have actors here. अगर हम ये मुद्दा स्टार्ट करते हैं हमारे मेंबर्स के लिए, और साथ साथ इस मुद्दे को, और जैसे अभी ना सुशांत represented the Federation of Western India's employees, although we are not part of them, he went and met the Ministry of Parliament Affairs, Kirit Somaiya, to discuss the problems of all the crafts. Upendra ji is very concerned कि जब हम लोग नहीं रहेंगे, I understand, इसके बाद जो कमेटी आएगी, what coming to your question, we are trying to make a way forward in such a way that a white paper is read, some kind of a guideline is given to the government so that all crafts benefit. अगर हम जो अगर भला करेंगे उससे बाकियों का भी भला होगा उपेंद्र जी. We'll be more than happy, because who would not like to see your staff happy? The person serving you tea, the person making your hair, although I have none, but you know, all these people, you know, your subordinates, your art directors, your costume stylists, your hairdressers, so these people, when you see happy faces, you see them feeling secure, we'll all be able to deliver a healthy, creative kind of an output. Just to cut it short. And do you feel like sometimes they are also kind of an obstacle to your things actually? Sir, yes. Some political parties की जो unions हैं, apart from collecting fines from producers on location and stopping shooting, कि नॉन मेंबर है तो काम नहीं करेगा, जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली हमें तो रोक दिया है कि मेंबर टू मेंबर वर्किंग क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में हो ही नहीं सकता है. हमें क्लियरली बोल दिया वो अगेंस्ट द लॉ है. बट जो पॉलिटिकल पार्टीज की यूनियंस हैं वो ब्लेटेंटली सेट्स पर जाती हैं, टेरराइज करती हैं, हफ्ता वसूलती हैं इस नाम पर कि ये नॉन मेंबर है, ये काम नहीं करेगा, 2-5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए. दे आर एन ऑब्स्टिकल. सॉरी सर, दे डोंट प्ले एनी पॉजिटिव रोल. तो डू यू दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इस चीज को, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा सुनना नहीं चाहती, क्योंकि दे फील कि भाई हमारी यूनियन है वो काम कर रही है. दे लुक. सर, आई वुड कमेंट ऑन दैट. डॉक्टर किरीट सोमैया इज लिसनिंग टू अस. The man, the chairman of the Parliamentary Committee for Labour, he is listening to us very proactively. कुछ दिन पहले भी वो आए थे, फिल्म सिटी का पूरा उन्होंने मुआयना किया है. उनकी और फेडरेशन की बातें लगातार चल रही हैं. अभी 20 तारीख को उनके यहाँ पर डिनर है, अगेन फेडरेशन एंड हमें भी बुलाया है. एंड वी आर वेरी होपफुल इन डॉक्टर किरीट सोमैया. वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी सी अ बीकन ऑफ होप there that he might start this whole thing of getting this law together.